guys, welcome to my channel and I am back with another YouTube video. So if you've been following me for a while, I've made videos on series of internship interview experiences 2021. Along with that, I've made videos on Google Step Internship and Google Generation Scholarship as well. So if you want, you can go check that out by clicking the I button. But today's video is completely dedicated to Google Summer of Code. So for all those who don't know about Google Summer of Code, it is basically an international annual program जिसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो और आगे चल के आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हो गूगल में या किसी भी कंपनी में, तो आपके रिज्यूमे को काफी अपर एज मिलता है और आप बाकी एप्लीकेंट्स की कंपैरेटिवली काफी अच्छे से स्टैंड आउट कर जाते हो. अलॉन्ग विद दैट, गूगल ऑफर्स अ हैंडसम स्टाइपेंड फॉर वर्किंग ऑन दैट ओपन सोर्स कोडिंग प्रोजेक्ट एज वेल. And there are other benefits as well that we will be talking about in the further video. So for today's video, we have Garv with us, who has been selected for Google Summer of Code 2021 and is going to share his entire journey with us. Along with that, he's also going to share how to write a proposal and how to choose an organization. So if you're a fresher and you want to explore open source and know more about GSOC, or if you are an aspirant for Google Summer of Code 2022, then this is the perfect video for you. So please watch till the end and let's begin with the interview. Hi Garv. Hello, Palak. So, can you introduce yourself? Yeah, sure. I am Gav Tambi. I am pursuing BTech from LNM Institute of Information Technology, Jaipur, in Electronics and Communication Engineering. I am a pre-final year student and highly interested in solving algorithmic problem as well as real-life challenges. I did several internship and cracked Google Summer of Code this year. Apart from that, I am also avid book reader. Okay, so how did you get to know about Google Summer of Code? Like how did your journey began? So initially, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मतलब I met with some of my seniors. So उनसे पता चला कि GSOC भी कुछ होता है, क्योंकि वो कि he or she cracked GSOC ऐसी बातें चलती रहती थी. So I am more interested to know about it. एज वेल एज और हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि जो भी GSOC वगैरह क्रैक या कोई भी अदर ऐसी प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेता था तो उसकी नोटिस बोर्ड पे नेम वगैरह और थोड़ा मतलब होता था. दिस आल्सो इंस्पायर्ड मी अ लॉट. सो जब से ऐसा लगा कि ठीक है मुझे भी GSOC करना है, तो मैंने जो क्रैक कर लिया, मतलब जो सीनियर क्रैक कर लिए थे उनसे बात करी, तो उनसे भी बहुत नॉलेज गेन हुई. As well as I watch several videos in YouTube. बहुत सारे व्लॉग्स पढ़े वगैरह की ठीक है ये गूगल समर ऑफ कोड का है और इसमें ओपन सोर्स, मतलब इतना इनिशियली जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपको पता नहीं होता कि ये ओपन सोर्स वगैरह क्या है, कैसे करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन. पर मतलब सीनियर्स की गाइडेंस बहुत ज्यादा थी, तो उनसे की हेल्प से और मतलब यूट्यूब वगैरह पे देख देख कर मुझे पता चला कि GSOC भी कुछ है. Okay. Yeah. So Garv, I'm more curious to know कि like if I'm a fresher and I think that I want to contribute to Google Summer of Code, so are there any requirements that I have to fulfill to be a part of this program? Okay, so basically there are two minor requirement that कि कोई भी एक लैंग्वेज में मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी कमांड होनी चाहिए, चाहे वो C हो, C++ हो, वो मैटर नहीं करता, पर कोई भी एक लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए. और दूसरा कि आपको गिटहब और गिट मतलब ये आना चाहिए. सो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको GSOC क्लियर करने के लिए जावा या कोई भी एडवांस लेवल लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब C से नहीं हो सकता. देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अराउंड 200 ऑर्गेनाइजेशन है, वो सी वाले प्रोजेक्ट पे वर्क करती है और C++ पे भी, और हाई मतलब डेटा साइंस वगैरह. तो ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई भी एक लैंग्वेज जो भी आपको प्रेफर हो या अच्छी लगती हो उसको में कमांड होना जरूरी है. सो बेसिकली जब भी ऐसे अपन GSOC की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, मतलब कि कैसे सेलेक्ट करें कि सी में ये है प्रोजेक्ट या C++ में. तो जैसे ही अपन वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के नेम के ऊपर क्लिक करते ही बॉक्स आ जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि ठीक है ये वाली बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनको C++ या ये चाहिए. अगर आपकी रिक्वायरमेंट उनसे अलाइन होती है, मतलब योर स्किल्स अलाइन विद देयर रिक्वायरमेंट, सो यू कैन
means know more about the organization, project list or more details. So ऐसे कुछ नहीं है, तो basic see और GitHub, that's enough. Okay. Okay. So any student can apply for it. Like, is there any limitation कि सिर्फ BTech के students apply कर सकते हैं या फिर any student can apply? लिमिटेशंस है कि बीटेक ऐसा कुछ नहीं है, बीटेक या बीएससी बस ये होना चाहिए कि वो कॉलेज गोइंग होना चाहिए, मतलब गोइंग, या ऐसे नहीं है कि कॉलेज पास आउट स्टूडेंट भी जीसॉप में अप्लाई कर सकता है, वो लिमिटेशन है, जो कॉलेज गोइंग बच्चा है वो ही अप्लाई कर सकता है। Okay, from any background, but college going student. कॉलेज गोइंग, यस। Okay. Okay, so I want to know about the application procedure of Google Summer of Code. सो बेसिकली मतलब जीसॉप की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है अराउंड मार्च। Okay. तो मार्च में ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस होती है कि कौन कौन से इस बार जीसॉप में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जरूरी नहीं होती कि जो पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी इस साल होगी, मतलब वो मे बी और मे नॉट बी पार्ट ऑफ जीसॉप। सो अराउंड मार्च में ये पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हुई है और इनके ये प्रोजेक्ट्स है, और अराउंड 20 to 25 डेज बाद मतलब स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब अपन 3 प्रपोजल्स सबमिट कर सकते हैं, 3 मेन प्रपोजल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम। सो जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई सी भी स्किल्स जो आपके अलाइन करती हो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। और इसके अलावा एप्लीकेशन जो भी नॉर्मल नेम वगैरह एड्रेस जो भी बेसिक होता है वो, और तीसरा होता है कि आपको वेरीफाई करना होता है कि आप सच में ही कॉलेज परसुइंग स्टूडेंट हो या नहीं, तो वो आईडी कार्ड या कुछ भी कॉलेज का वो सबमिट हो जाता है, या So like I have heard कि अगर आपने पास्ट में कोई like open source में contribute कर रखा है, like you have some background in contributing to open source, so it is always good, like you have good chances to get selected for Google Summer of Code. So what do you think? What is your call on it? इन माय ओपिनियन ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि अगर आपने पहले मतलब कंट्रीब्यूट किया हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट होता है। मेजरली क्या होता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें आपने कितने मतलब कंट्रीब्यूशन कर रखे हैं, आपने जो प्रोजेक्ट यूज किया है उसमें आपको कितनी नॉलेज है, मतलब कौन सा स्किल, कौन सा एल्गोरिथम या कौन सी अप्रोच से आपने उसको सॉल्व किया है, मतलब डिपेंड ऑन योर प्रपोजल जो भी आप लिखते हो। कि थर्ड कि आपने मतलब उसको कंट्रीब्यूट, मतलब जो आपने कोड में कंट्रीब्यूट कर रखा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने कंट्रीब्यूट कर रखा है, सो उसमें आपने मतलब कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपको कोड। सो ये मेजरली जाती है, इंस्टेड ऑफ कि आपने पहले क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। बस वो खुद को ही अपर एज मिलता है कि आपने पहले कंट्रीब्यूट कर रखा हो, तो इट हेल्प यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस कि ठीक है मैं कर, और ऐसा। Okay, so is there any way, to select an organization, and like how did you select your organization? टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ मतलब वो नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन वो मतलब मोर यू एक्सप्लोर मोर यू गेट वाली चीजें हो जाती है कि ठीक है आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ही आपको एडवांटेज और उतना ही ज्यादा जानने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे केस में ये था कि पर्सनली मुझे पाइथन, सी प्लस प्लस, डेटा साइंस और ओपन सीवी इन चीजों में मैं कंफर्टेबल था। सो आई वेंट टू द जीसॉफ वेबसाइट और एक्सप्लोरिंग ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि उनका क्या क्या स्किल्स चाहिए उनको, मतलब मेरी स्किल्स उनके साथ अलग होती नहीं होती। तो मैं एक पूरी लिस्ट बना लिया कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऊपर ऊपर से देखकर कि ठीक है ये वाली स्किल, मतलब अभी मैं प्रोजेक्ट पे नहीं गया, सीधे से स्किल बनाकर मैंने वो सारे छाट किया कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन की स्किल मेरी स्किल से अलाइन होती है। फिर रिक्वायरमेंट, फिर थोड़ा डीप में मतलब क्योंकि बेसिकली अपन मैक्सिमम 3 प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, तो मैं अराउंड 25 to 30 ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी जो मेरे स्किल, तो इतना तो फिर कोई सेंस भी नहीं। फिर मैं उनकी प्रोजेक्ट्स वगैरह लिस्ट में गया कि ठीक है उनके क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या मैं उन प्रोजेक्ट से कंफर्टेबल हूँ या मतलब। सो आई रीड ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड ठीक है कि मुझे लगा कि अच्छा मैं इसमें वर्क कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट
सो ये सारी चीजें पैरामीटर सब कुछ करके फाइनली आई कम विद और ओनली 2 ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैक्सिमम अपन 3 ऑर्गेनाइजेशंस मतलब प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन या को। उसमें लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि ठीक है, आपको पूरा कोड बेस, हर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कोड बेस समझना, उनके इंटरेक्ट करना, मेंटरिंग करना, और अपने साइड में अकेट्स वगैरह भी रहता है, और भी मतलब काम तो इतना सब नहीं पता। तो मैंने चूज किया था कि 2 ओपन सीवी, मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन चूज की, ओपन सीवी एंड सेकंड वन इज रोबोकॉम। ओके सो रोबोकॉम था कि मतलब मैंने एक कोर्स ले रखा था कि सेल्फ ड्राइविंग कार रिलेटेड कोर्स लिया था यूडेसिटी पे। सो वो बहुत ज्यादा अलग कर रहा था, तो मुझे लगा हाँ मैं कर सकता हूँ इस वाली फील्ड में, मुझे आइडिया था कि कैसे चीजें होती है। तो बेसिकली फिर मैंने रोबोकॉम्प और ओपन सीवी में भी मुझे कंफर्टेबल था, मतलब उनके प्रोजेक्ट वगैरह से। ओके So I choose of them. Yeah. ओके So, like, how was your experience working in the community, like working with the mentors? Basically, environment कैसा था काम करने का वहाँ पे? बहुत सही, मतलब लिटरली बहुत अच्छा था कि सब, मतलब ये मेरा इतना वास्ट, मतलब प्रेस्टिजियस जीसॉप, मतलब ये बोला जाता है, और लिटरली कि हर जो आपकी हेल्प कर रहा था कि मुझे जब यहाँ पे छोटा सा छोटा डाउट हो कि ये नहीं हो रहा, सो आई जस्ट पुट माय क्वेरी और डाउट इन अ गिटर चैनल, मतलब कम्युनिटी का चैनल वेयर ऑल द community members solve each and other doubt or means discuss things related to code वगैरह। so वहाँ पे मतलब बहुत हेल्पफुल थे पर्सनली मेरे मेंटर, मतलब हर प्रोजेक्ट वैसे अराउंड 12 to 24, मतलब 12 to 15 मेंटर्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, और हर प्रोजेक्ट पे मतलब डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रोजेक्ट है, किसी में 5 भी होता है, किसी में 10, किसी में 11, और बेसिकली हर प्रोजेक्ट को 2 या 3 मेंटर्स मतलब होता है असाइन। सो जो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल रोबोकॉम में जो मुझे प्रोजेक्ट था उसमें 2 मेंटर असाइन हुए थे मुझे। वन इज फ्रॉम यूएसए एंड वन अदर इज फ्रॉम स्पेन। सो मतलब बहुत ही, मतलब ये पहला था कि हमेशा तो ये कि अपने लोकल वगैरह, पर वो बहुत सही, आपको उधर की चीजें पता चल रही है, वो क्या करते हैं, मतलब अदर देन दैट इफ यू हैव एनी अदर डाउट सो यू कैन आल्सो डिस्कस। मतलब मेरे मेंटर बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ कि, मतलब ये था कि पहले वो अपडेट रेगुलरली मांगते थे, पर रेगुलरली क्योंकि कॉलेज भी चल रहा है, एकेड्स एग्जाम वगैरह, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने बोला कि अगर 2-3 डेज में वंस इन अ, मतलब ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक अपडेट हो, तो वो इजीली मान गए, तो ऐसा कुछ नहीं था, और कोई भी डाउट हुए तो वो बहुत हेल्पफुल वगैरह, गाइड वगैरह। सो या So you must have written like proposals for the organization. Okay, so you know how to write a proposal basically for an organization that you're applying for. अगर आपको मतलब बेसिकली प्रपोजल में मेन ये चीज आती है कि आपने जो प्रोजेक्ट चूज किया है उसके बारे में आप कैसे इलेबोरेट करके, मतलब कौन से स्किल्स, कौन सी अप्रोच, कौन सी टेक्निक की यूज करते हुए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे, मतलब एवरी स्टेप। दूसरा उसके अंदर मेन होता है कि व्हाई यू आर अ गुड फिट, कि मतलब ऐसा है। थर्ड थिंग अपन जो प्रपोजल में लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए इस ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट, मतलब प्रपोजल बनाने से पहले जब ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या क्या आपने चेंजेस किए डॉक्यूमेंटेशन या कोई कोड में कुछ चेंज किया है, तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है अगर आपने कर रखा हो तो, जिससे ये पता चल जाता है मेंटर को कि हाँ ये हाईली इंटरेस्टेड है इसमें, और इसको कोड कोड नॉलेज है, मतलब इसको कोड समझ में आ गया है। सो उनके लिए भी इजीली है। और फोर्थ मेन चीज होती है टाइमलाइन, कि मतलब कि टाइमलाइन होती है कि जब से स्टार्ट होगा एंड जब तक आप क्या क्या करोगे और किस स्पीड में करोगे, कि पहला टास्क मैं 1 वीक में कर दूंगा, दूसरा टास्क ऐसे ऐसे करके इवेल्युएशन वगैरह होते हैं। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, मतलब फर्स्ट इवेल्युएशन होता है कि अराउंड जुलाई में, मतलब जून में ही एंड में रिजल्ट आता है, और जून मिड में स्टार्ट होता है, मतलब फॉर माय इन माय गेस जून 7 जून से स्टार्ट हुआ था, तो जुलाई 15 में मेरा फर्स्ट इवैल्यूएशन था, और सेकंड इवैल्यूएशन 23 अगस्त। तो आपको इसको सॉ कंप्लीट करने में दोनों इवैल्यूएशन में पास होना पड़ता है, कि आपने जो मेंशन किया है उसको आप सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो मेंटर जज वगैरह करता है, तो उसके बेस पे आप पास हो। तो ये मतलब चीजें होती है जो प्रपोजल बनाते हुए आपको ध्यान रखना है। Okay, okay.
Okay, so one last question that I want to ask you, Garv, that like many of the people would be interested to know this. What are the benefits of getting selected for this program? Like as you said, कि interaction कर पाते हैं, like you get to interact with a lot of people, like highly educated people. Apart from that, what all benefits are there? Apart from that, you get a title of G Soccer means, and this was amazing. Second, stipend, you get good stipend. मतलब अभी $1,500 हुआ है, पहले तो तभी ये $3,000 था, पर इसका एक एडवांटेज और है कि पहले मतलब मिनिमम 35 to 40 hours पर वीक वर्क करना पड़ता था, पर अब हाफ कर दिया 15 to 20 hours, सो स्टाइपेंड भी हाफ हो गया. For $1,500 also quite amazing, means around 1,10,000. So it was Yeah. good. And the third one, that is the I like the most, that you get up skill, means up hand in the Google application. कि अगर आप गूगल में अप्लाई करते हो तो वो आपका जो रेज्यूमे वगैरह सबमिट किया उसको अपर एज देता है कि उसमें जीसॉप का टाइटल, सो वो भी एक एडवांटेज है कि अगर आप फ्यूचर गूगल में वर्क करना चाहो तो. यस. So, are there any tips that you would like to share for the aspirants of Google Summer of Code? श्योर. सो फर्स्ट, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग अर्ली. इसका मतलब यह है कि दिसंबर के एंड या मतलब जैन स्टार्ट में आप ऑर्गेनाइजेशन चूज करना स्टार्ट कर दो कि जो आपके स्किल से मैच करती है उनका रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो अपर एज देगा कि अगर आप उस टाइम पे सेलेक्ट करोगे तो उस टाइम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही मतलब उन ऑर्गेनाइजेशन के टच में हो जो आप पहले से इंटरेस्टेड हो. सो ऐसा नहीं है कि कोड वगैरह लिखने लग जाओ या कोड में चेंज, इतना कुछ नहीं, बस इनिशियली चिल चिल मोड पे कि आपने उनके सोशल मीडिया पे जो जो मतलब सोशल चैनल होते हैं, स्लैक और गिटर जो भी मेजर वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करे हो, उसके अंदर एक एक्टिव मेंबर बन जाओ कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो बस आपको पता चलता रहे. और उस टाइम पे गिट वगैरह की नॉलेज अगर आपको नहीं हो पहले से तो वो सीख लो, बस ये चीजें करनी है इनिशियली. फिर मार्च में ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हो जाती है, तो अगर आपने पहले से ही चूज कर रखी होगी और वो सेलेक्ट हो गई जीसॉप मिल पर, सो आप आपको ज्यादा टाइम नहीं लग गया कि वो चूज करने में पूरा कि ये वाला है पूरा. सो आप डायरेक्टली उनका मतलब जीसॉप उनके प्रोजेक्ट लिस्ट देख सकते हो और स्टार्ट इन प्रपोजिंग योर प्रपोजल. सो उससे होगा कि आप जितना ज्यादा मतलब प्रपोजल मतलब अपने मेंटर्स के सबमिट करोगे या चेक बैक करवाओगे, उतना ही आपको अपर एज मिलेगा, क्योंकि एक लास्ट में ही होता है कि बहुत सारे बच्चों का आ जाता है प्रपोजल, तो वो मेंटर्स इतना ध्यान नहीं देते कि किसका क्या है वगैरह. अगर आप पहले दोगे तो पहले उनके पास इतना टाइम रहता है कि वो अगर देख ले वगैरह, चेक कर ले, कुछ मतलब गड़बड़ हो या कुछ वो चाहते हैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करवाना या सब्ट्रैक्ट करवाना, तो वो करवा सकते ही. और वो मतलब आप ज़्यादा बात भी कर लोगे कि मेंटर के टच में रहोगे, उनसे अच्छे क्वेश्चंस पूछो उस टाइम पर, इनिशियली मेकिंग प्रपोज़ल, क्योंकि आपने वो पहले ही कर लिया. तो आप अब उसको चेक कर कि फॉर इन माय केस कि ये हुआ था कि मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने जल्दी से बनाकर उनको सबमिट कर दिया था, तो वो उन्होंने 2-3 चेंजेस बताए कि ऐसे पहले इनिशियली मैंने पैराग्राफ में लिख रखा था, तो उन्होंने बोला मतलब पॉइंट्स में स्प्लिट करो, मेक इंडेक्स, थोड़ी टाइमलाइन वगैरह. तो वो बहुत अच्छा एज मिल गया मुझे कि वो मतलब इंटरेक्ट भी होते रहे, जिससे मेंटर्स को भी पता चल गया कि हाँ ये इंटरेस्टेड है और इसको नॉलेज है बेस की और जो जो स्किल्स इसने लिखी है. तो ये है. और मतलब वही, और जब आपका प्रपोजल सबमिट हो जाता है तो उस टाइम पे आप मतलब जो अदर कम्युनिटी मेंबर जो मतलब उनके डाउट वगैरह, कोई भी न्यू मेंबर ज्वाइन हो रहा है उनके डाउट वगैरह सॉल्व करो, मतलब एक्टिव रहो कि कुछ भी हो रहा है ग्रुप में, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब वैसे-वैसे उनसे डाउट इंटरेक्ट करते रहो और हमेशा गुड क्वेश्चन मतलब ट्राई टू आस्क गुड क्वेश्चन. अब गुड क्वेश्चन की डेफिनेशन ये है कि एक तो होता है कि आपको इजीली गूगल पे कुछ मिल रहा है तब भी आप उसको अपने मेंटर्स को मेल कर रहे हो या उनको पूछ रहे हो, तो मतलब अच्छा नहीं रहता. इंस्टेड ऑफ ऐसे क्वेश्चन कि हाँ उनको मेंटर्स को भी लगे कि हाँ ठीक है, दीज ऑल आर गुड क्वेश्चन. Apart from that, I also shared my proposal, and it may help you to draft your proposal. Yeah, okay. So I'll attach that in the description below your proposal. you also share my LinkedIn profile in your description.
if any of the student have any doubt, Yeah, they will contact me, and I'm happy to help. sure. So thank you so much, Gar, for sharing your experience with us and for all those tips that you gave for the aspirants. I hope this helps a lot of people who are, aspiring for Google Summer of Code. All the very best to all the students who are going to apply Yeah. GSOC. Yeah. Yeah, all the very best. So guys, this is it for today's video. I hope you guys find it helpful. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you have any other doubts related to GSOC, feel free to comment down below. I have attached Gar's LinkedIn handle in the description so you can ask him personally as well. I have also attached link to his proposal in the description, so go check that out. And I will be back with another video soon. Till then, bye bye, take care.